मुंबई में जेनेटिक्स रिसर्च, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव इंजीनियरिंग के संगम में एक ऐतिहासिक उद्घाटन किया है। 2023 में स्थापित जेनेटिक्स रिसर्च तेजी से एक आशा का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने एडवांस हेल्थ केयर समाधान की तलाश में डॉक्टर अरुण जेटली और डॉक्टर एलेजांड्रो रियोस जेनेटिक्स रिसर्च के पीछे दृढ़ संगठन की विजनरी टीम के मुख्य नेतृत्व करते हैं। डॉक्टर जेटली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एक प्रमुख आलेखक है, जो मेडिकल साइंस में गहरी समर्पण को एक साथ लेकर बायोटेक्नोलॉजिकल नवाचारों में पहल करते हैं। डॉक्टर रियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक दृढ़ विचारशील है, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में विशेषज्ञता लाते हैं और कई प्रौद्योगिकियों को आवृत करने के लिए एक बहुपेशी दक्षता समेत कई प्रौद्योगिकियों को आवृत करने के लिए एक बहुपेशी दक्षता लाते हैं। जेनेटिक्स रिसर्च का स्वास्थ्य नवाचारों के प्रति समर्पण उसके वैश्विक मौजूदा को दर्शाता है, जिसमें मैक्सिको, यूके और भारत में कार्यालय शामिल है। इस वैश्विक प्रतिबद्धता ने कंपनी की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य समाधानों के लिए समर्पण को पुनः दृढ़ किया। ब्रेस्ट कैंसर के लिए माइक्रो आरएनए कॉकटेल टीका पारंपरिक तरीकों से हटकर जेनेटिक्स रिसर्च ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्रांतिकारी माइक्रोएना कॉकटेल टीका विकसित किया है। एआई की शक्ति का उपयोग करके कंपनी ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बदल दिया है, जिससे इस क्रांतिकारी टीके का विकास हुआ। जेनेटिक्स रिसर्च ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन किया, जिसका परीक्षण के बाद 98.9% की सफलता दर है। कंपनी जुलाई 2024 में लंदन में अपने पहले ऑर्डर के बैच को सफलतापूर्वक डिलीवरी करने के लिए तैयार है, जिसके पहले संयंत्र की आपूर्ति मैक्सिको में हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जेनेटिक्स रिसर्च जनवरी 2025 में भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। My name is Dr. Arun Jetli. I am the CEO of the Genetics Research Limited, and my background is that I did a PhD in biomedical engineering from Queen Mary University of London, and together we formed a company and we launched a new product in the market called Regex for breast cancer vaccine. Yeah, so my name is Dr. Alejandro Rios. I also studied in Queen Mary University of London. I did a PhD back then on medical engineering using artificial intelligence, so my whole background has been like around computer science. And I'm currently the CTO and Chief Financial Officer of Genetics Research, which Dr. Aaron already mentioned. It's the company that created the Regex breast cancer vaccine. Starting with you, what makes this vaccine unique compared to existing treatment for the breast cancer? So you sir. Well, I think it's a unique treatment in the sense that because we are eradicating the chemotherapy, immunotherapy, hormone therapy, whatever therapies are there in the country at the moment. So let's say that hormone therapy, targeted therapies, we are just eradicating with a single dose of the vaccine. So vaccine is basically going to be increasing the immune response for the body in such a sense that you don't have to go for like very expensive high rated treatments. You can just have a single dosage of a vaccine to treat your disease. So it's a precaution and a cure both at the same time, which is like beautifully created in the laboratories with the help of Dr. Alex software, because we studied a lot of oncogenes and cancer cells in the body, and we identified that it can be treated very easily just with a single dose of the vaccine, like how COVID vaccine came in the India, how diabetes vaccine today launched in the India. So that's the same concept. It is eradicating all the treatment pathways just for a single dose of the vaccine for all the stages of cancer, stage 0 to the stage 4. All stages are cleared with this microphage. How effective is the vaccine in preventing or treating breast cancer for you? Yeah, so basically currently it's a 99.9% for preventing breast cancer, and also for curing the breast cancer is on the same scale of percentage. Are there any side effects or risk associated with the vaccine? Well, I would say there is no side effects because I personally have tested all the things, and I did a successful animal trials with the help of Dr. Rios in the NHS UK. That's one of the largest government bodies for the hospitals. And I think that currently when we're doing a phase 1 and phase 2 clinical trial testing, there were still no side effects what we found as other treatments have it. So my vaccine that we created is zero side effects, which we claim about that and which we have tested report about that thing. In the UK currently is a phase 3 going on the very critical ICU patients at the moment, and I think that
hopefully it will be passing the same stages as phase 1 phase 2 is doing. So there is no, this is a zero side effect vaccine because working for the immune response. Currently being an Indian, Yeah. you come to the seriously after they have हाँ जी हाँ जी, जो मेरी जो वैक्सीन बनी है वो सब सारी की सारी महिला को देख के बनी है। हमने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करा, हम लोगों ने सारे के सारे जितनी भी पॉपुलेशन आती है वुमेंस की, सारे के सेवन कॉन्टिनेंट्स में हमने उसको टारगेट करके वैक्सीन बनाई है। तो आई थिंक ये एक यूके रिस्पॉन्स पे नहीं जाती, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड जा रही है। तो हर वुमेन के जेनेटिक्स अलग होते हैं, तो हम लोगों को उसको टारगेट करके वैक्सीन अपनी वाले बनाई है। तो और ऐसा नहीं है कि वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो इन मेन्स। So yeah, in USA 500 men each year gets breast cancer, so it's very prominent because hormones सेम ही बॉडी के अंदर। तो हम लोगों ने दोनों को टारगेट करके बनाई है, बट अभी सिर्फ लॉन्च सिर्फ विमेंस के लिए हो रही है। मेंस के लिए आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम कुछ करेंगे उनके लिए भी, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे केसेस थोड़े सीवियर चले जाते हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो हम यही चाहते थे कि इंडिया में जब हम लॉन्च करें तो वो जीरो इफेक्टिव कॉस्ट पर लॉन्च हो, जिससे सारे वुमेन्स को सब कुछ मिले, उनको प्रिकॉशन भी इंजेक्शन भी मिले, साथ साथ में उनको उसकी सेल्फ अवेयरनेस भी हो जो हॉस्पिटल्स नहीं कर पाते। तो हमारा वही सारा था, उसके ऊपर हमने सोचा था कैंपेन में से चलाने के लिए। हाँ जी, देखिए मेरा मानना ये है कि मैं अपनी वैक्सीन बना करके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आगे कि उसको उनको कितने पे देना है। मेरा यही होगा कि सबको फ्री में मिले जितना हो सके, मेरा यही है कि सबको फ्री में मिले। गवर्नमेंट डिसाइड करे, रिसर्च अपने कैंपेन्स वो प्रोवाइड करे, एंड आगे के आगे जितने NGOs हैं, जितने सेमी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबको वो फ्री में लॉन्च करे। मेरा आइडिया यही है। तो कोशिश यही करूँगा कि आगे गवर्नमेंट को भी पिच हो सके, बट देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब कुछ पूरा हुआ है। आई हैव FDA licenses, I have coffee press from Mexico, I have MHRA, I've already applied for DCGI जो ट्रक कंट्रोलर इंडिया के हैं। तो मेरा ऑलरेडी फेजेस क्लियर हो चुकी हैं, I'm just awaiting for my license confirmation। जैसे वो हो जाएगी इंडिया मार्केट में भी लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। So I already have an order from Indian hospitals, I'm just awaiting the confirmation from the DCGI to get me the license after that। Well, I think this is something simple, right? Like you guys came here for getting to know and awareness about the breast cancer. So आपके सामने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च हुआ नहीं जो कैंसर की वैक्सीन बना रहा हो। बनाते हैं कंपनीज, पर 50% 40% तक का रेशियो रहता है, और हमारी कंपनी कह रही है कि हम 90% से ऊपर के हम टारगेट करा सकते हैं, हम उसको थेरेपी दे रहे हैं। एक या दो चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हम अपनी कमी पेशी पूरी करने की कोशिश करने पर लगे हुए हैं, बट ये वैक्सीन इतनी यूनिक इस वे में है क्योंकि ये बॉडी को ही टारगेट करके उसको कह रही है खुद सेल्फ अपना रेप्लिकेट करके उसको ख़त्म कर सके डिजीज़ को, जो बाकी वैक्सीन नहीं करती हैं। बाकी वैक्सीन का काम है एक प्रिकॉशन देना, हम तो क्योर भी दे रहे हैं साथ में वैक्सीन को, तो थोड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है। There's a precaution and a cure and a different sense. It's a very beautiful piece of a vaccine which has been targeting all the different treatments which we can know, which we already know about the research type of things. So 8 target is inside single dose, and stage by stage dosage अलग हो जाती है। जैसे stage 1 में you have only 1 dose, stage 2 1 dose, stage 3 and 4 depends upon the how critical the patient is, because repeat chances भी आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ऐसा नहीं कि कैंसर एक बार हो गया आपने कीमो करा लिया तो दोबारा नहीं हो सकता है, बट उसका कितना हो सकता है, कितने चांसेस हैं, हम अपनी वैक्सीन से उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। What is the role of AI in this vaccination? Well, the role of AI is quite actually, I could say it's a little bit simple, but it's actually not that simple. We involve AI in all the whole process or the research or how like certain components of interactions with mRNAs and microRNAs interact in the body. So using this data that is available right now in the world, because we're living in an era where data is being gathered for every patient, like in the genes and genomes, we use this data to train like these novel models that are out there for the AI, like these things like large language models, which is something like ChatGPT uses. There are some other like convolutional neural networks that are very well known in the research field to help in studying the background of the biology of the data. So combining these old technologies, we will be able to like we have been able to create this vaccine in the whole process of the research of it, how it's impacting the body, how certain genetic systems are being impacted. We can
like predict all the previous work that it's been made from the vaccine right before it, and then test it directly in the lab. So AI has been heavily used for the development of this first vaccine. And right now we're at such a point that we have created this protocol of mixing of AI and biology together, that now we can repurpose all the AI background that we have developed for the whole process and target for different other diseases. वही तो डिस्टर्ब करना, वही मुझे देखो, अब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए तो हम भी अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोगों का खर्चा कम हो, हम तो कह ही रहे हैं कि लोगों का खर्चा कम होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से हमारा काम तो हो ही रहा है। इलीगल जो बिजनेस हो रहा है, देखिए मैं कहता हूँ कि कीमोथेरेपी का खर्चा है, मशीन लगाने का खर्चा है, आपका बेड का खर्चा आ रहा है, और भी 1000 खर्चे होंगे, फार्मेसी से दवाइयाँ हो रही हैं, कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट चलता रहेगा, डॉक्टर्स की अपनी फीस है। अब बट उसको हम उसको एज अ ट्रीटमेंट लेकर के, कॉज लेकर चल रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा तो फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। आई थिंक जैसे आप देखिए कि जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, मैं कहता हूँ कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल कौन सा है। आप मैदानता में चले जाइए, आपको तो और पैसा लगेगा उसके ऊपर, डॉक्टर्स महंगे हैं, बाहर का स्टाफ है, बाहर की मशीन है। मेरी वैक्सीन बनी है 1000 रुपये में, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट फ्री कर रही है, तो पब्लिक को तो अच्छा खासा इलाज मिल ही रहा है उसके थ्रू। तो वो डिपेंड उस पर करता है हम कितनी अवेयरनेस कॉज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेगनेंट केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी तो है ही, हम तो उसको ख़त्म करने पर लगे हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितनी भी थेरेपीज होती हैं वो बॉडी में और भी डिसीजेस प्रोमिनेंट करवा देती हैं, जिससे हम ये नहीं चाहते कि अगले बंदे को उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। आप एक अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो दोबारा दूसरी बीमारी भी हो सकती है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि खत्म हो गए तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका इम्यून सिस्टम तो लो हो ही चुका है, तो आप सोचो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा उसके बाद। जब मैं और हाँ, मेंस में भी होता है। मेंस का ट्रीटमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि हार्मोन लेवल अप डाउन होता रहता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों महिलाओं में भी होते हैं और मेल्स में भी होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन उसकी हो रही है, और उसको टेस्ट करने का तरीका वही है जो महिलाओं का होता है, एक्जैक्टली सेम वाला प्रोसेस है, बट हम उस पर हार्मोन टेस्टिंग करवाते हैं मेंस के लिए। मेंस को पता नहीं लगता, उनके लंग्स पे सीधा इफेक्ट आ जाता है, और वुमेन्स का तो हाँ जी हमें वही रिएक्ट, देखो आते थोड़े से दोनों सेंस पे हैं, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग न्यू, तो विश्वास कराना बहुत मुश्किल होता है। एक नई कंपनी के लिए, एक नई साइंटिस्टों के लिए ऑफकोर्स मार्केट बढ़ रही है, तो आप विश्वास कराने में लगे हैं उनको, तो ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म तो थोड़ा मिलता है, बट धीरे 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 जैसे हम अपनी और पब्लिसिटी, हम अपने और प्रचार करते हैं मीडिया के थ्रू, या लिंक्डइन पे डालते हैं, या अपने प्रोफाइल्स पे डालते हैं, या हम सेमिनार कराने जाते हैं जब अपने, आई हैव लॉट ऑफ सेमिनार्स गोइंग ऑन इन यूएस एंड यूके एट द करंट मोमेंट, वेयर आई एम प्रमोटिंग माय ओन वैक्सीन, माय ओन कंपनी to come in the UK market with the doctors that we can do together something in a large scale. So I think it's a mixed response, but I think after certain years, certain months, it's gonna be like fixed. Like we could be like the competitors for Serum Institute also. I believe that, because they also started with some different vaccine, but then today's their biggest world manufacturer. So we also have the same vision that we can match their spirit about that. Criticism is there, but I think I take in a very positive way, and same for Dr. Rios. We take criticism in a because it's a very sporty way to take it, to activate something and to drive our thirst for making this beautiful products for the company. Apart from that, I can say today that we also got a patent for kidney cancer, and we have applied for the prostate cancer. So I think we have a lot of line of R&D products going on. Concept is same, is a precaution and a cure, but we are launching in a very different standing markets. So India will be receiving this vaccine soon, from I think January 2025, what we are aiming for. But UK and other parts of the world is going to be getting from July 2024 this year.